ایک پاکستانی سنائپر کی دشمن کے علاقے میں کامیاب آپریشن کی سچی داستان۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ دوڑنا بھاگنا آرمی کے ہر کورس، کھیل اور کیڈر کا جزو لا ینفک ہے۔ ہم بھی صبح کی سخت ترین پی ٹی کے بعد فائرنگ رینج پر پہنچے تو انسٹرکٹر شدت سے منتظر نظر آئے۔ چونکہ پی ٹی اور فائرنگ کے انسٹرکٹر علیحدہ علیحدہ تھے، اس لیے فائرنگ انسٹرکٹر وہاں پہلے سے موجود تھے۔ صوبیدار راؤ تصور صاحب ہمیں پڑھانے لگے۔ سنائپنگ آپ لوگوں کے لیے کوئی نیا موضوع نہیں ہے، لیکن الفاظ کی تکرار اور دہرائی سے ہمیشہ انسان کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ بعض اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ کوئی بات دوسری یا تیسری دفعہ سمجھانے پر انسان کے دماغ میں بیٹھتی ہے۔ ہم آج بھی زیادہ تر پرانی باتوں کو دہرائیں گے۔ اس کا یہ مطلب لینا بھی بالکل غلط ہے کہ کچھ نیا نہیں پڑھیں گے، گویا ہم دہرائی کے ساتھ پڑھائی بھی کریں گے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ ایک اچھے سنائپر کے لیے چند باتوں کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، جیسا کہ وہ اچھا نشانے باز ہو، چھپاؤ اور تلبیس کا ماہر ہو، جنگی چالوں سے اچھی طرح واقف ہو، اسے نقشہ بینی پر عبور ہو، بہت زیادہ قوت برداشت کا مالک ہو اور جلدی سے فیصلہ کر کے اس پر عمل کرنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ گو اس کے علاوہ بھی کئی خصوصیات ایک اچھے سنائپر سے توقع کی جا سکتی ہیں، مگر ان کی حیثیت ثانوی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے نشانہ بازی کا، یہ ایک قدرتی صلاحیت ہوتی ہے اور زیادہ تر سکھلائی اس صلاحیت کو مزید پالش کرتی ہے۔ اگر ایک آدمی قدرتی طور پر اچھا فائرر نہیں ہے تو زیادہ پریکٹس سے اس کا فائر بہتر تو ہو سکتا ہے، بہترین نہیں ہو سکتا۔ مطلب وہ اچھا سپاہی بن سکتا ہے، اچھا سنائپر نہیں بن سکتا۔ نشانہ بازی کے علاوہ جلدی اور بر وقت فیصلہ کرنے کی اہلیت بھی ایک آدمی کو قدرتی طور پر میسر ہوتی ہے، البتہ باقی صلاحیتیں مشق کی متقاضی ہوتی ہیں۔ جیسے چھپنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ چیزیں نظر کیوں آتی ہیں۔ کوئی بتا سکتا ہے چیزیں نظر کیوں آتی ہیں؟ راؤ صاحب ہمیشہ تبادلہ خیال کے انداز میں لیکچر دیتے۔ جی سر، شہزاد جلدی سے بولا۔ شکل و صورت سے، سائے سے، حرکت سے، فوجی ساز و سامان سے، سطح سے، پس منظر سے، درمیانی فاصلے سے۔ گڈ۔ اب جب کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہم کس وجہ سے نظر آ سکتے ہیں تو چھپنے کے لیے ہمیں ان باتوں سے پرہیز کرنا ہوگا۔ دیکھیں، بھیڑوں کے ریوڑ کے درمیان چلتا ہوا گڈریا ہمیں فوراً نظر آ سکتا ہے، لیکن وہی گڈریا اگر اپنے ہاتھ زمین پر ٹیک کر گھٹنوں کے بل چلنا شروع کر دے تو یقیناً اس کا نظر آنا ممکن نہیں رہے گا۔ کیا خیال ہے؟ جی سر، ہم یک زبان ہو کر بولے۔ اسی طرح سرسبز جھاڑیوں کے بیچ سفید، سرخ، زرد رنگ وغیرہ قسم کا لباس پہن کر چھپنے کی کوشش کرنا ناکامی کو گلے لگانے والی بات ہے۔ البتہ سبز رنگ کا لباس آپ کو سبزے کا حصہ بنا دے گا۔ اس کے برعکس اگر آپ برفیلے علاقے میں ہیں تو وہی سبز رنگ آپ کو پھنسا دے گا، وہاں آپ کو سفید رنگ کا لباس چھپنے میں مدد دے سکتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ ساکن اشیاء کے درمیان آپ کی ذرا سی حرکت بڑی آسانی سے مشاہدے کی زد میں آ جائے گی، اور سکائی لائن پر حرکت تو ایک سنائپر کے لیے تباہ کن ہے۔ ان کی باتیں جاری رہیں۔ راؤ صاحب کا کسی بھی موضوع پر لیکچر سن کر میرے دل میں یہی خیال جنم لیتا کہ میں اس موضوع کے بارے میں بہت کم جانتا ہوں۔ ہمیشہ ان کے لیکچر میں نئے نئے نکات اور عمدہ معلومات کی بھرمار ہوتی۔ 2 پیریڈ پڑھائی کے بعد ہم فائرنگ کرنے لگے اور بقیہ دن اسی کام میں گزرا۔ 2 ہفتوں کے بعد ہمارا ٹیسٹ ہونا تھا، جس میں سب سے زیادہ نمبر نشانہ بازی کے تھے۔ پہلے ہفتے کے اختتام پر میں نے ویکینڈ لیا، لیکن گھر جانے کی بجائے میں نے ثوابی کا رخ کیا تھا۔ ہمارے استاد ہمیں بہت اچھا پڑھا رہے تھے، مگر اس کے باوجود میری خواہش تھی کہ میں مقابلے کے ٹیسٹ سے پہلے استاد عمر دراز سے کوئی رہنمائی لے لوں۔ یقیناً اس کے پاس عملی تجربہ موجود تھا۔ ثوابی سے 20-22 کلومیٹر آگے اس کا گاؤں تھا۔ شیوا نام کا گاؤں کافی بڑا تھا۔ اس کا مکان ڈھونڈنے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہوئی تھی۔ دروازے کی اطلاعی گھنٹی کی غیر موجودگی میں مجھے دروازہ کھٹکھٹانا پڑا۔ دروازہ استاد عمر دراز ہی نے کھولا۔ ارے ذیشان بیٹا، مجھے دیکھتے ہی اس نے حیرانی سے کہا اور اس کے ساتھ ہی معانقے کے لیے بازو وا کر دیے۔ جی سر، میں نے احترام سے جواب دیا۔ اندر آ جاؤ۔ اس نے ایک طرف ہو کر مجھے اندر جانے کا راستہ دیا۔ ویسے سر، شاید میں نے اپنا نام آپ کو نہیں بتایا تھا۔ میں نے گھر میں داخل ہوتے ہی حیرانی سے پوچھا۔ یہ سوال اس بات کا ثبوت ہے کہ تم اپنی ٹریننگ کو عام زندگی میں بروئے کار نہیں لا رہے۔ بھلا وہ کیسے؟ استاد عمر دراز کے اشارے پر میں صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھ گیا تھا۔ بھول گئے؟ اس دن جب تم لوگ واپس جا رہے تھے تو تمہارے دوست نے نام لے کر تمہیں پکارا تھا، اور ایک سنائپر کی یادداشت اتنی کمزور نہیں ہونی چاہیے کہ اسے ہفتے ڈیڑھ میں کسی کا نام بھول جائے۔ اس کی بات سن کر میں ششدر رہ گیا۔ واقعی میں اس کی یادداشت اور مشاہدہ غضب کا تھا۔
किसी दूसरे के पुकारने पर किसी का नाम यूं याद रख लेना बज़ाहिर नज़र आम सी बात है, मगर रोज़मर्रा ज़िंदगी को देखें तो उस बात का अंदाज़ा होगा कि क्या हम सरसरी मुलाकात में किसी का नाम इस तरह याद रख सकते हैं। यकीनन सैकड़ों में कोई एक आध बंदा ही याद रख पाता होगा। सर आप कुदरती स्नाइपर हैं, मैं तारीफ़ किए बिना नहीं रह सका था। वाह, एक नाम याद रखने से मैं स्नाइपर बन गया। सर नाम तो मैं एक वक्त में दर्जनों याद कर लूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यादाश्त भी बहुत अच्छी है, मगर आपका अंदाज थोड़ा निराला लगा। वो हंसा। खैर छोड़ो, ये बताओ चाय कहवा या ठंडा चलेगा? मौसम की मुनासबत से तो ठंडा ही बेहतर रहेगा, मैंने बगैर किसी तकल्लुफ़ के जवाब दिया। उसने वहीं से ज़ोरदार हाँक लगाई, वशमा, और उसके बाद पश्तो में जो कुछ कहा उसमें सिर्फ शरबत का लफ्ज़ मेरे पल्ले पड़ा था। और फिर इससे पहले कि मैं वशमा के बारे में कोई अंदाज़ा लगाता, वो अपना तारुफ कराने लगा। उसकी नरीना औलाद नहीं थी, 2 बेटियां थीं जो कि कब की अपने घरों की हो गई थीं, बल्कि अब तो खुद बच्चों वाली थी। उन दिनों वो अपनी घरवाली के साथ अकेला ही रह रहा था, और यही वजह थी कि वो मुझे सीधा घर के अंदर ले आया था, वरना पठानों में किसी को घर के अंदर ले जाने का रिवाज ज़रा कम ही है। मेहमानों की खातिर हर घर से मुल्हिक बैठक मौजूद होती है। शरबत बनाकर उसकी बीवी वहीं ले आई थी। जग गिलास टेबल पर रखकर उसने मेरे सर पर हाथ रखकर पश्तो में कुछ कहा, जिसका तर्जुमा उस्ताद उमर दराज ने किया। वो मुझसे हाल चाल पूछ रही थी। ठीक ठाक हूँ खाला, बस आपकी दुआ चाहिए, मैंने उर्दू में कहा। मेरी बात का तर्जुमा भी उस्ताद उमर दराज ने पश्तो में किया और वो सर हिलाते हुए वापस चली गईं। उस्ताद उमर दराज ने मुस्कुराते हुए मुझे मशवरा दिया, वैसे तुम्हें पश्तो सीख लेना चाहिए। ये कहकर वो गिलास भरने लगा। सही फरमाया। शरबत का गिलास उसके हाथ से थामते हुए मैं इत्मीनान से बोला, फ़िलहाल तो आप मुझे निशानाबाजी के बारे में कुछ सिखाएं। इतने अच्छे निशानाबाज तो हो तुम। शायद ऐसा ही है, मगर आप जैसा बनना चाहता हूँ। तो किसने कहा कि तुम मुझसे कम हो? सर गो आप कसरे नफसी से ये कह रहे हैं, इसके बावजूद मैं फूले नहीं समा रहा। अब ऐसा भी नहीं है सर, अब छोड़ें भी, ये न हो मैं फूल कर फट ही जाऊँ। और मेरी यादाश्त इतनी भी कमज़ोर नहीं है। मुझे आपकी सारी गुफ्तगू हरफ बहरफ याद है कि मेरे फ़ायर में आपको कौन कौन सी खामियां दिखाई दी थीं। अब मैं वो और उस जैसी मज़ीद खामियां दूर करने आया हूँ। उसके लिए आपके असातिज़ा मौजूद हैं ना? उसने हैरानी से पूछा। या उनसे मुतमईन नहीं हो? नहीं, बहुत अच्छे उस्ताद हैं, ख़ासकर राव तसव्वुर साहब तो बेहतरीन इंस्ट्रक्टर हैं। मैं खुलूस दिल से बोला। लेकिन आप तो उनके भी उस्ताद हैं, बल्कि उनके उस्तादों के उस्ताद। हाँ, मगर अब तो कई जदीद राइफ़ल्स मुतारिफ़ हो गई हैं और हम ठहरे माजी के स्नाइपर। सर निशानाबाजी की असल टेक्निक्स तो वही है ना? वो मुस्कुराया। वैसे तुम्हारे बारे में मेरा अंदाज़ा ठीक था कि काफ़ी ज़िद्दी हो। परसों शाम को मेरी वापसी है, मैंने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। हथियार तो यकीनन साथ नहीं लाया होगा? उसने पूछा। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, सर आप तो आर्मी के कवानीन के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। यूं ही पूछ लिया था। वैसे मेरे पास ड्रैगनऑफ मौजूद है। ओह वेरी गुड, मैंने तहसीन आमेज़ लहजे में कहा। ड्रैगनऑफ स्नाइपर राइफ़ल रूस की ईजाद करदा एक सेमी ऑटोमेटिक स्नाइपर राइफ़ल है। हालांकि उमूमी तौर पर स्नाइपर राइफ़ल्स बोल्ट एक्शन होती हैं, मतलब हर दफ़ा फायर के बाद राइफ़ल को कॉक करना पड़ता है। उसकी रेंज 1000 मीटर है और मैगज़ीन में 10 गोलियों की गुंजाइश। उसका बुलेट स्टायर स्नाइपर जितना ही होता है, मतलब 7.62 mm। बस मियाँ शौक था। पिछले साल कुछ रकम हाथ लगी और मैंने अपना शौक पूरा कर लिया। ठहरो तुम्हें दिखाता हूँ। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और चंद लम्हों बाद ड्रैगनऑफ राइफ़ल को हाथ में पकड़े कमरे से बरामद हुआ। राइफ़ल की भूरी बॉडी चमक रही थी। वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा था कि उस्ताद उमर दराज उसकी सफाई का खुसूसी एहतमाम करता है। ये देखो, उसने राइफ़ल इस अंदाज में दोनों हाथों में पकड़कर मेरे हवाले की, गोया वो कोई मुकद्दस सहीफ़ा हो। मैंने उसके हाथ से राइफ़ल थामते हुए अपनी ट्रेनिंग के मुताबिक सबसे पहले राइफ़ल की मैगज़ीन उतारी और फिर 2 दफ़ा कॉक करके इसके खाली होने का यकीन करने के लिए उसकी बैरल ऊपर की तरफ करके मैंने ट्रिगर प्रेस किया और पूछा, काफ़ी महंगी आई होगी? नहीं, मेरे शौक से थोड़ी कम कीमत ही थी। हाँ सर, शौक से तो हर कीमत कम ही होती है। और उसकी टेलीस्कोप साइट? मैंने बेसाख्ता हंसकर पूछा। ख़रीदी थी, उसके बगैर ये राइफ़ल किस काम की? सही कहा सर, मैंने इस बात में सर हिलाया। उसी वक्त शाम की अजान होने लगी थी। वज़ू करके हम मस्जिद में चले गए। वहाँ काफ़ी आदमियों ने मुझे पहचान लिया था। उवैस की शादी के दिन मैंने निशानाबाजी का जो मुजाहिरा किया था वो उन्हें भूला नहीं था। वो तमाम मुझे बहुत मोहब्बत और अकीदत से मिले थे। नमाज के बाद काफ़ी आदमी बज़िद थे कि मैं उनके घर खाना खाने चलूँ, मगर उस्ताद उमर दराज खुद एक रिवायती पठान था। घर आई रहमत को वो किसी के घर कैसे जाने दे सकता था?
खाना खाकर हम इशा की नमाज तक गपशप करते रहे। नमाज पढ़कर उस्ताद उमर दराज बैठक ही में राइफल उठा लाया और मुझे निशानाबाजी के मुतालिक खास बातें बताने लगा। पता है फायर पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज होने वाली चीज़ कौन सी है? हवा। मैं बगैर किसी झिझक के बोला। गुड। उसने तहसीन आमेज अंदाज में सर हिलाया। फायर पर असरअंदाज होने वाले उमूर में हवा सबसे अहम है, और यकीनन तुम जानते होगे कि जूं जूं फासला बढ़ता जाएगा फायर होने वाली गोली पर हवा का असर बढ़ता जाएगा। एक स्नाइपर ने लंबे फासले से हदफ को निशाना बनाना होता है, इसलिए उसे हवा की इकसाम, फायर शुदा गोली पर हवा का असर और उसके तदारक के बारे में मालूम होना चाहिए। बुनियादी तौर पर हवा की 4 इकसाम होती हैं: हल्की हवा, दरमियाना हवा, ताज़ा हवा और तेज़ हवा। उस्ताद उमर दराज हवा के फायर पर असरअंदाज होने पर तफसील से रोशनी डालने लगा। गो उनमें अक्सर बातों का मुझे पहले से पता था, मगर काफ़ी नई बातें भी सुनने को मिली। हवा के तस्करे के बाद वो धूप, धुंध, ठंड, बारिश, नमी, दर्जा हरारत और गीले एमुनेशन वगैरह के बारे में भी तफसील से बताने लगा। आखिर में वो कह रहा था, मैं जानता हूँ तकरीबन ये तमाम बातें तुम्हें पहले से मालूम होंगी, मगर मैं चाह रहा था कि दोहराई हो जाए ताकि कल अमली तौर पर बरूई कार लाते वक्त ये बातें हमारे जहन में हों। नहीं सर, तमाम तो नहीं, अलबत्ता अक्सर बातें मेरे इल्म में थी। अच्छा अब सो जाओ, रात काफ़ी हो गई है, सुबह इंशाअल्लाह अमली तौर पर मश्क करेंगे। सर एक बात पूछना थी। उसे जाने पर आमादा देखकर मैंने अपने दिल की खलिश दूर करना चाहिए। हाँ पूछो। ये यूसुफ खान कौन था? कौन यूसुफ खान? उस्ताद उमर दराज ने हैरानी से पूछा। वो जिस दिन हम शादी के सिलसिले में यहाँ आए थे, उस दिन एक भाई ने मेरी तारीफ़ करते हुए कहा था कि मैंने यूसुफ खान की तरह दुल्हन वालों की शर्त पूरी की है। उस्ताद उमर दराज मुस्कुराया। खैर ये तो उसने मुबालगा आराई से काम लिया था। ये तो है सर, वक्ती जोश में आकर काफ़ी हजरात मुबालगा आराई में मुलविस हो जाते हैं। वैसे तुमने यूसुफ शेरबानो का किस्सा नहीं सुना? नहीं सर, मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। उस्ताद उमर दराज चंद हमें सोच कर कहने लगा, ये बहुत दिलचस्प दास्तान है ज़ीशान। यूसुफ खान और शेरबानो उसी इलाके के हकीकी किरदार हैं। ये जो शेवा गांव से मुल्हिक पहाड़ी आपको नज़र आ रही है, इसे करमाड़ पहाड़ी कहते हैं। इसकी चोटी पर दोनों का मज़ार बना हुआ है। यूसुफ खान तरलांदी गांव का था और शेरबानो शेरागंड गांव की थी। यूसुफ खान वालदैन का इकलौता बेटा था और शिकार का शौकीन था, और उसकी एक बहन भी थी जो उससे छोटी थी। वो हरन के शिकार के लिए करमाड़ पहाड़ी पर जाया करता था। वो नहायत हसीन और जमील और पुरकशिश जवान था। एक दिन शिकार पर जाते हुए उसकी मुठभेड़ शेरबानो से हो गई, जो बजाते खुद हुस्न का मुजस्मा थी। उसे देखते ही शेरबानो दिल हार बैठी। अब वो रोज़ाना यूसुफ खान का इंतज़ार करती कि उसे देखकर अपनी आंखों की प्यास बुझा सके, और फिर ज़्यादा दिन उससे सब्र न हो सका और एक दिन उसने यूसुफ खान को रोककर अपने दिल का हाल कह सुनाया। उसकी शक्ल सूरत ऐसी न थी कि यूसुफ खान इनकार करने के काबिल होता। वो भी दिलो जान से उस पर फरेफ्ता हो गया। यूसुफ खान का ताल्लुक किसी अमीर घराने से नहीं था। इसी तरह शेरबानो का ताल्लुक भी सफ़ेद पोश तबके से ही था। बज़ाहिर उनकी मोहब्बत की राह में कोई रुकावट मौजूद नहीं थी। बस यूसुफ खान शेरबानो का रिश्ता लेकर अपने सरपरस्तों के हमरा उनके घर पहुंच गया। लेकिन ये तो उसूल दुनिया है कि दुनिया वाले मोहब्बत की राह में रुकावटें डालते रहते हैं। शेरबानो के हुस्न की वजह से उसके भी कई तलबगार थे। शेरबानो के वालिदैन ने यूसुफ खान को टालने के लिए एक बहुत बड़ी रकम का मुतालबा कर दिया। इतनी रकम कि उसकी अदाई यूसुफ खान की बिसात से क्या, उसके पूरे ख़ानदान की बिसात से बाहर थी। मगर वो आशिक सादिक ज़रा न घबराया और शेरबानो के वालिदैन से मोहलत तलब करके रकम के हुसूल के लिए अपना घर बार छोड़कर अकबर बादशाह की फ़ौज में मुलाजिम हो गया। वो एक अच्छा सिपाही था। जल्द ही उसने अकबर की फ़ौज में अपने कदम जमा लिए, और फिर उसकी खुशकिस्मती कि किसी बागी रियासत के नवाब की सरकोबी के लिए अकबर ने एक लश्कर भेजा, और यूसुफ की सलाहियतों को देखते हुए उस मुख्तसर लश्कर की सिपह सालारी उसे सौंप दी गई। उस जंग में यूसुफ खान को फतह हुई। अकबर बादशाह उसकी कारकर्दगी के मुतालिक सुनकर बहुत मुतासिर हुआ और उसने खुश होकर उसे शर्फ मुलाकात बख्शा। दौरान मुलाकात उसने यूसुफ खान से अपनी फ़ौज में उसकी शमूलियत की वजह दरियाफ्त की। जवाबन यूसुफ खान ने सारी कहानी कह सुनाई। बादशाह ने उसी वक्त उतनी रकम यूसुफ खान के हवाले करने का हुक्म दिया जिससे वो शेरबानो के वालिद का मुतालबा पूरा कर सके, और फिर रकम की हिफाजत और यूसुफ खान को बाहिफाजत उसके इलाके तक पहुंचाने के लिए सिपाहियों का एक दस्ता भी उसके हमरा रवाना किया। यूसुफ खान करीबन 10 बरस बाद वतन वापस लौटा था। उसकी बदकिस्मती कि जिस वक्त वो अपने इलाके में पहुंचा उसे इतला मिली कि शेरबानो की शादी किसी और से तय पा गई है। यूसुफ खान को इतला सवाबी के मशहूर गाँव दोबियान में मिली। यूसुफ खान वहाँ अपना पड़ाव डालने की तैयारियों में था। ये खबर सुनते ही वो बगैर किसी ताखीर के शेरबानो के गाँव शेरागंड की तरफ रवाना हुआ।
वहाँ पहुंचकर उसने सारी रकम शेरबानो के वालिदैन के कदमों में ढेर कर दी। मगर अब इसमें एक दूसरा ख़ानदान भी मुलविस हो गया था। जिस ख़ानदान के लड़के से शेरबानो की निस्बत तय हुई थी वो हथियार सौंध कर बाहर निकल आए और लड़ने मरने पर तैयार हो गए। यूसुफ खान भी कहाँ पीछे हटने वाला था। अपनी जिस महबूबा के लिए उसने दर दर की खाक छानी थी वो उसे किसी दूसरे के हवाले करने पर कैसे तैयार हो सकता था। दोनों तरफ से जंगजू आमने सामने हो गए। घमसान का रन पड़ा जिसमें दोनों तरफ के काफ़ी लोग मर गए। उस लड़ाई में फतह यूसुफ खान की हुई और बिलाखिर वो शेरबानो को हासिल करने में कामयाब हो गया। अपनी दुल्हन को लेकर वो घर पहुंचा। वो मन्नतें मुरादें पूरे होने की रात थी। जब वो अपनी दुल्हन का घूंघट उठाने के लिए नज़दीक हुआ तो चौखोशंग महबूबा ने एक अजीब शर्त रख दी। कहने लगी, यूसुफ खान, जब तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम हिरन के शिकार के लिए जा रहे थे और अब मैं मुंह दिखाई में भी हिरन के गोश्त की तलबगार हूँ, ऐसा हिरन जो तुमने अपने हाथ से शिकार किया हो। यूसुफ खान ने महबूबा की शर्त पर सर तस्लीम खम किया और रात के उसी पहर तीर कमान उठाकर करमाड़ पहाड़ी की जानिब रवाना हुआ। वो महबूबा के वस्ल में मज़ीद ताख़ीर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके 2 पालतू कुत्ते भी उसके हमरा थे। और फिर उसकी बदकिस्मती की पहाड़ी की बुलंदी पर उसका पाँव फिसला और महबूबा की शर्त पूरी करने की हसरत दिल में लिए वो करीबन 100 मीटर गहराई में जा गिरा। वफादार जानवर मालिक को गिरते देखकर भौंकते हुए वापस घर की जानिब भागे। घर वालों ने दोनों कुत्तों को दर्दनाक अंदाज में भौंकते देखकर जान लिया कि यूसुफ खान के साथ कोई हादसा पेश आ गया है। कुत्तों के पीछे दौड़ते हुए जब वो उस जगह पहुंचे तो यूसुफ खान अपनी आखिरी सांस ले रहा था। गम से निढाल महबूबा ने बेताबाना महबूब शोहर का सर अपनी गोद में रखा और यूसुफ खान उसे हसरत भरी नज़रों से देखता हुआ खालिक हकीकी से जा मिला। यूसुफ खान को उसी पहाड़ी की चोटी पर दफन किया गया। उसके बाद शेरबानो भी ज़्यादा अरसा ज़िंदा नहीं रह सकी और जल्द ही उसकी रूह अपने महबूब से जा मिली और उसे भी उसके महबूब के पहलू में दफन कर दिया गया। उनकी कब्रें आज भी उस पहाड़ी की चोटी पर मौजूद हैं और मोहब्बत करने वाले वहाँ अपनी मोहब्बत के हुसूल के लिए दूर दराज से मन्नतें मांगने के लिए आते हैं ताकि उनकी मोहब्बत कामयाबी से हमकिनार हो। अब यह मन्नत पूरी होती है या नहीं ये तो खैर अल्लाह को पता है, मगर जुहला ने अकीदा यही बनाया हुआ है। पश्तो के मशहूर शायर जोशी अली हैदर ने यूसुफ खान और शेरबानो के मुतालिक काफ़ी दर्दनाक अशार कहे हैं जिन्हें पढ़कर आंखें नम हो जाती हैं। उस्ताद उमर दराज वो दर्दनाक कहानी ख़त्म करते हुए पूछने लगा, अब बताओ ज़ीशान, क्या तुमने यूसुफ खान की तरह दुल्हन वालों की शर्त पूरी की है? नहीं सर, मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। मैं तो फ़िलहाल यूसुफ खान के किलीवाल गाँव वाले से फायरिंग के ढंग सीखने आया हुआ हूँ। उस्ताद उमर दराज बेसाख्ता हंस दिया। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होगी। इंशाल्लाह, मैंने इस बात में सर हिला दिया। जी तो व्यूअर्स, हमारी आज की एपिसोड अपने अख्तिताम को पहुंची। अगर आपको ये पसंद आई है तो कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ज़रूर लिखें। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।